So students, today we are proceeding with the another topic, which is the measurement of capacitances. We have done with the resistances, we have done with the low, medium and high resistances measurement. Also we have completed the inductance part. So there we have studied the two method according to the syllabus. So now we are proceeding with the measurement of capacitances. So there are many methods to find the capacitance, but the first one we are doing is de Shortest bridge. So this is the very simple method for finding the value of unknown capacitors in terms of the known standard capacitor. So we are having an unknown capacitor as well as a standard capacitor. So the value of unknown capacitor can be measured while comparing with the standard known capacitance. Okay, so let's study with the circuit diagram. So here is the circuit diagram of the bridge. So what we are going to do is, here we have attached a capacitor. This is the unknown capacitor, and this is the we can say that standard known capacitor. So here in the arm the resistance are the same as we have done in the previous one. So here it is the variable resistor. Now this is very simple bridge, we can say that. Also we are going to do the modification part in this lecture. So, as you all know, at the balance condition, I have told you what you have to write, that impedance is Z1, Z4 is equals to Z2, Z3. So, you all know about the impedances. Those who don't know, they can refer the previous lecture in this video, in which for the induction measurement I have told you how to find the impedances. So at the balance condition, Z1, Z4 is equals to Z2, Z3. So how we write the capacitance inductance in this format, I have already did this lecture. So the capacitance we have to write 1 upon j omega C1. Why we have write C1? Because in the circuit diagram we have wrote like C1. So अब हमको क्या करना है, वी हैव टू सी द डिफरेंट आर्म्स हेयर. सो हम लोगों को हर एक आर्म का इम्पिडेंस रखना है और इम्पिडेंस बैलेंस कंडीशन में डालना है. तो जैसे मैंने आपको कहा कि Z1 Z4 is equals to Z2 Z3. So now what we are going to do is, we are filling up the values like as we have did in the previous one. So in the capacitances we are going to make the impedances equal. So for Z1 we are taking this arm, and for Z4 we are taking this arm. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन आर्म्स को बैलेंस कंडीशन जो है उसमें आप लोगों ने इनकी वैल्यू को फिल करना है. सपोज अब Z1 की वैल्यू है 1 अपॉन j ओमेगा C1. हम कैसे लिखते हैं C को, कैपेसिटेंसेस को ऑल्सो ऑलवेज वी हैव टू राइट दैट 1 अपॉन j ओमेगा C1 इनटू R4. क्यों? क्योंकि ये है हमारी Z4. नाउ विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन j ओमेगा C2 इंटू R3. सो ये हमारी थी Z2 इम्पिडेंस, ये हमारी है Z3 इम्पिडेंस. सो अब अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, लेट्स सी. सो for those who are having confusion, so I have written the values over here कि Z1 क्या है, Z2 क्या है, Z3 Z4 क्या है. so हमने इसकी वैल्यू को पुट किया. so on simplifying it and uh, making the real and imaginary parts on a separate mode, we can find out the value of C1, which is unknown capacitance. C1 is equals to C2 into R4 by R3. Also I have make an phasor diagram here. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोग देखो, करंट जो हमने पास किया है ना, I1 और I2 हमारे वो क्या है, इन फेस हैं. दैट्स वाई हम लोगों ने इसको एक ही लाइन में ड्रॉ किया है. तो करंट I1 I2 इन फेस हैं, तो उनके वोल्टेजेस भी क्या हो जाएंगे, इन फेस. इट मीन्स E3 और E4 जो है फॉल कर रहे हैं उस एरिया में, तो वो भी क्या हो जाएंगे हमारे वैसे ही इक्वल. सो आप चाहो तो आप सर्किट डायग्राम से भी देख के ये चीजें डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, E3 एंड E4. देन वी हैव E1 एंड E2, ये भी हमारे क्या आ जाएंगे, इन फेस हैं. सो इन फेस है मतलब इनकी डायरेक्शन हमने इस तरीके से बनाई है, क्योंकि ये वाले जो ये वाले करंट है ना, E1 और E2 वाले, ये इस तरीके से हमारे फॉल कर रहे हैं. तो इनका रिजल्टेंट है हमारा E. सो ये रहा आपका फेसर डायग्राम. अब हम
ये जो कैपेसिटेंस था ना हमारा, मतलब ये वाला जो मेथड था, दिस ओनली मेजर्स दी मींस वी कैन यूज दैट द लॉसलेस एयर कैपेसिटर, इस मतलब मीडियम में यूज कर सकते थे। हम इसमें क्या कर रहे थे, लॉसेस को मान के निग्लेक्ट कर रहे थे, मींस हम मान के चल रहे थे लॉसेस है ही नहीं इसमें। तो दैट्स वाई हम लोगों ने देखा कि अगर लॉस वाली कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा, ठीक है। अब हम ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पे लॉसेस हम लोगों को दिखाने हैं। सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डी शॉर्टेज ब्रिज, ऑल्सो नोन एज सीरीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सीरीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ये याद रखना। सो कैन बी कम इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए। सो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम, वहां पे वी आर यूजिंग ओनली दी अननोन कैपेसिटेंस एंड यहाँ पे भी सिर्फ ऐसे ही रहता था, बाकी सब चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस वैसा ही है जैसे हम यहाँ पे मतलब यूज कर रहे थे। लेकिन अब कैपेसिटेंस के साथ आप एक देख रहे हो स्मॉल आर जो हमने डिनोट किया है इसके साथ एक रेजिस्टेंस वो हमने लगाया, वो रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के लॉसेस को डिनोट कर रहा है, मीन जो हम C1 के लॉसेस हैं उस रेजिस्टेंस के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया R2 करके, बाकी कैपिटल R1 R2 हमारे मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये ब्रिज में हम लॉस ले रहे हैं, सो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने क्या करना है, बैलेंस कंडीशन लगानी है। बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3। आपने सारी कंडीशंस को डालना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या की है मैं आपको एक बार बता दूं, अब ये सीरीज में आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो ये सीरीज में आ रहा है। जब हम यहाँ से इस यहाँ पे Z1 इम्पीडेंस लेते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, हम क्या करते हैं R1 प्लस ये वाला R1 करके लिख लो, प्लस के पहले ये लिख लो, इट डजेंट मैटर बिकॉज ये सीरीज में R1 प्लस C को कैसे लिखेंगे 1/j⍵c। ये वाली आर्म मींस ये वाली आर्म का इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, सॉरी किससे मल्टीप्लाई होगा, इनटू R4, ये वाली इम्पीडेंस मींस Z4 से। सो उसी तरीके से ये वाला इम्पीडेंस मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, इट मींस R2 प्लस R2 plus 1/j⍵c. So after simplification, you can get the value of C1 which is equals to C2 R4 by R3. So this is the value of the unknown resistance. There is also another factor which is dissipation factor. You can study that also, but I am not included in that in this lecture. सो दिस ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉसी कैपेसिटर। यहाँ पे मतलब हम लॉस जहाँ पे आ रहा है हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दैट ब्रिज विच वी आर यूजिंग लाइक द सिंपल डी शॉर्टेज ब्रिज हम लोग जो यूज कर रहे थे वो हम लॉसलेस मीडियम के लिए यूज कर रहे थे, जहाँ पे हम लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे थे। सो मॉडिफिकेशन भी मैंने पढ़ा दी आपको। मॉडिफिकेशन में हमने कैसे रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर का लॉस दिखाया और जिसकी वजह से हमारी वैल्यू आ गया। So this is very easy method. Don't need to, you have no need to worry about it. Only you have to do the practice. Do the simplification part and try to solve at your own. Also remember कि हम यहाँ पे AC करंट का यूज कर रहे हैं जो आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये चीज याद रखना, ठीक है। So I think this is clear now. Now we can end this session. You have already completed so many parts. So thank you. Do revision. I hope you have understood the video.